Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. Excited for today's video? I know you all have been waiting for this. And I'm sure with this sample paper, with this series of questions, you will definitely learn something new. And I have designed this sample paper and set the questions accordingly, जो आपके जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं. So let's start to solve the sample paper. Check out your pen and notebook and let's solve it together. Before starting, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like my video, do press the like button, share your views in the comment section because your likes, your comments definitely motivate me and encourage me to do more for my students. So let's start now. This is the sample paper and the very first question is differentiate between the mutable and immutable objects in Python. And the correct definition for this is mutable objects are those objects in which changes can be done in place. अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि immutable changes can be done and immutable changes cannot be done. This is half definition. The main point is immutable changes can be done in place. In place means on the same memory location. And immutable objects are those objects in which changes cannot be done in place. Means उसी memory location पर आपके जो भी changes हैं वो नहीं होंगे. Let me show you this practically. Now suppose here I have taken the list with these three elements and the ID of this list is this. With the help of ID function we can find out the memory location of that variable. Now I am changing the value of list at 0th index. I am changing it to 65. L में change हो गया. Now we will check the ID of L. Now you can see the ID of the previous one and the ID of this new one. Both are सेम. दैट मीन्स जो भी हमने चेंजेस किए हैं दैट आर डन इन प्लेस मीन्स मेमोरी में उसी सेम लोकेशन पर हुए हैं. सो आपका जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उनके एग्जांपल क्या हो गया बेटा? लिस्ट एंड डिक्शनरी. दीज आर टू म्यूटेबल डेटा टाइप्स. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ immutable data type. Let me suppose check here an integer value. This A is your integer and let's just check the ID of this A. This is the ID of variable A. Now I am changing the value A equals to A plus, let's suppose 10. Now the value of A is 64. Earlier it was 54, now it's 64. But now when I am checking the ID of A, as you can see, this time the ID of A is different. Means जो भी आपके changes हुए हैं not in place, उस memory location पर नहीं हुए. तो आपके जो immutable data types हैं उसके example आप क्या लिख सकते हो? Numbers, strings and your tuples. In even your exam you can find the question categorize the sequences in mutable and immutable data types. So mutable are your list and dictionary and immutable are your numbers, strings and tuples. Now next question, name the Python library module which needs to be imported for the following function. Again these type of questions are very important, like functions to be given to you and you have to identify the module. Error finding questions plus output finding questions, questions based on the random module. These are very important. आप मानकर चले कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं तो तुमको जरूर अच्छे से करना है. So let's this next question, seal function. This is in the math module and reader function. Remember CSV module. Because to write the data in a CSV file, we have to create a reader and writer object
and to create the reader and writer object, we have to call the reader function of the or writer function of the CSV module. Now next question is, observe the following Python code very carefully and rewrite it after removing all the syntactical errors with each correction underlined. The first thing in these type of questions, this question will be of 2 marks. And in 99% cases, you will find 4 errors. I'm not saying always, but 99% cases में आपके question में 4 errors होंगे if it is of 2 marks. Half mark for each error. And आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको करेक्ट करके भी लिखना है कोड को, प्लस whatever corrections you have done, you have to underline those corrections also. Now see, this is def. That means function definition part is starting here. And अगर मैं function definition की बात करूं तो जहां से वो start होता है, def is my keyword. And this will be in the small letters. So first error is this, you have to write the def in the small letters, plus you have to underline that. Now next, this is the name of the function, brackets भी given है, plus आपको यहाँ पर columns भी check करने की whether it is given or not. Next statement, this is going to take the input from the user and store it in the variable x. This statement is correct. Now condition check करनी है, इसकी indentation भी correct है. Absolute of x equals to x. अब जहां पर भी मुझे कोई चीज compare करनी है, for comparison we have to use double equals to. So here you have to use double equals to. You have to put double equals to here, plus you have to underline that. If के बाद colon है, this is also correct. Now print, you entered a positive number within quotes, this is correct. Else part, colon है, this is again correct. X equals to into minus 1. ठीक है, that means x equals to x into minus 1. इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, पहले ऑपरेटर आता है फिर equals to आता है. That means x into equals to minus 1. And print number made positive x. x की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो इसके बाद क्या आएगा बेटा, डबल कोट्स के बाद कोमा. Plus in the earlier versions of Python, print was a statement, not a function. So आप बुक्स में भी देखेंगे या नेट पर भी देखेंगे, प्रिंट के आगे ब्रैकेट्स नहीं गिवन होंगे, because that codes were written in the 2.x versions. Now we are having 3.x, plus in your curriculum also we are having the latest version of Python 3.x. So in that print is a function, so we have to use the bracket also. ठीक है. Now these are 4 errors, 1, 2, 3 and 4, half mark for each error. You have to correct that, plus you have to underline the errors also. Now next question, in this you have to find the output of the following. One list is given to you, let me just take it here. L equals to, elements of list are 100, 900, 300, 400 and 500. The very first thing you have to do, you have to give the index to each elements of the list. This is at index 0, 1, 2, 3 and 4. And believe me beta, output finding questions are very simple. You just have to clear your logics plus flow of execution. किस statement के बाद कौन सी statement execute होगी. After that you just have to put the values in the variables and do the calculation part only. Now आपको यहाँ पर start की value given है बेटा, that is 1 plus value of sum is 0. In the question it's given in uppercase letter, so you have to write it in the uppercase. Now for C in range, that means for C in range, अब C की value कहाँ से कहाँ तक है बेटा, from start to 4 and the value of start is 1 और range function मेरा कम तक चलता है, that means 4 minus 1 3 तक चलेगा. तो C की values क्या हो जाएंगे बेटा, 1, 2 और 3. मीन्स इन 3 values के लिए मुझे इसको solve करना है. First of all we will solve it when C equals to 1. Now when C equals to 1, we have to execute this statement. Sum equals to sum plus L1 C. You just have to substitute the values. Value of sum is beta 0 plus L1 of C. Value of C is 1. L1 of 1, that means जो मेरी list है L1
उसमें फर्स्ट इंडेक्स पर विच वैल्यू इज देयर 900, सो वी हैव टू यूज 900. सम इक्वल्स टू 0 प्लस 900, दैट मीन्स 900. सो अब यहाँ पर आपके प्रिंट स्टेटमेंट है बेटा, सी कॉलन सम. आई एम राइटिंग द आउटपुट हियर, वैल्यू ऑफ सी इज 1 and the value of sum is 900. So it will print 1 colon 900 and then it will execute the next statement. Sum equals to sum plus L1 of 0 into 10. अब देखो ये आपकी हमेशा यही सेम रहेगी, L1 of 0 into 10. L1 of 0 100, 100 into 10 1000. Now you have to substitute the values. Sum equals to value of sum. Now you have to take 900. 0 nahi, you have to take the updated value. Plus L1 of 0 is 100. 100 into 10. That means 1000. Remember the BODMAS rule na? 900 plus 1000. That means 1900. तो अब यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है बेटा? सम की. So what it will print? 1900. Now, अब ये execute होगा बेटा when the value of c is 2. Let me just erase this to avoid the confusion. Sum equals to sum plus, अब sum की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? 1900, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, plus L1 of 2. Now value of c is 2, so you have to take L1 of 2. And जो हमारी लिस्ट है उसमें सेकेंड इंडेक्स पर क्या है बेटा? 300. तो sum equals to 1900 plus 300. That means sum equals to 2200. अब मुझे क्या करना है? प्रिंट C colon sum. That means value of C is 2 colon और sum की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास अभी? 2200. तो it will print 2 colon 2200. And then next statement will be executed. Sum equals to sum plus L1 of 0 into 10. That means value of sum 2200 plus 1000. L1 of 0 100, 100 into 10 1000. तो 2200 plus 1000, that means 3200. तो अब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी बेटा? 3200. Now we have to solve this for value of, when value of c is 3. अब यहाँ पर लिखेंगे sum equals to, सम की वैल्यू 3200 प्लस L1 ऑफ 3. L1 ऑफ 3 इज 400. तो सम इक्वल्स टू 3200 प्लस 400. दैट मीन्स सम नाउ इक्वल्स टू 3600. अब प्रिंट क्या कराना है? C colon sum. आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज ऑफ द स्पेस. नाउ वैल्यू ऑफ C इज 3 colon सम की वैल्यू क्या आई बेटा? 3600. So it will print 3600. Now next statement will be executed. Sum equals to sum plus L1 of 0 into 10. So sum equals to value of sum 3600 plus L1 of 0 into 10, that means 1000. So 3600 plus 1000 is 4600. तो अब यहाँ पर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा? 4600. Let me just check the answer. 1 colon 900, then 1900, 2 2200, 3200, 3 36. So this is the final output of this question. Now again another output based question. Here you have to find the output of the following code. The function name change list is given, and in the beginning 3 empty lists are given to you with name L, L1 and L2. And this is the code for I in range 1, 10 L dot append I. That means अगर मेरा ये वाला for loop execute होगा, this one first for loop 1, 10 और range function एक कम तक चलेगा. That means from 1 to 9 it will execute. जो मेरा वेरिएबल I है उसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी? From 1 to 9. और उन्हीं I की वैल्यूज को मुझे क्या करना है? अपने लिस्ट में अपेंड करना है. So that means जो मेरी L की लिस्ट है उसमें क्या आ जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This. Now the second for loop. For I in range 10,
1 and -2. 10 is the starting value, 1 stop value and -2 is the step value. मीन्स आपका स्टार्ट तो कहाँ से होगा 10 से और स्टेप वैल्यू मीन्स -2 करते चले जाएंगे. 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 और जो मेरा एंडिंग वैल्यू है 1, अगर मेरी स्टेप वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक ज्यादा तक चलेगा. ठीक है, रिवर्स. तो दैट मीन्स जो आपकी लिस्ट है L1 इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी 10, 8, 6, 4 एंड 2. ये मेरी लिस्ट हो गई. नाउ फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ L1, दैट मीन्स जो मेरी ये वाली लिस्ट है L1 इसकी मुझे लेंथ काउंट करनी है. लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L1 आर 5. ठीक है, 5 एलिमेंट्स हो गए. अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं फॉर I इन रेंज 5 और बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होगा रेंज फंक्शन 0 से. दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 4 इट विल एग्जीक्यूट. और एग्जीक्यूट करते टाइम क्या करना है I की वैल्यू पहले क्या होगी 0. L1 ऑफ 0 प्लस L ऑफ 0. दैट मीन्स L1 ऑफ 0 10 और L ऑफ 0 1. 10 प्लस 1 11. ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ I विल बी 1. तो L2 में क्या आ जाएगा L1 ऑफ 1 प्लस L ऑफ 1. दैट मीन्स 8 प्लस 2 दैट मीन्स 10. फिर 6 प्लस 3 9. इस तरीके से ये चलेगा. सो आई एम राइटिंग द लिस्ट L2 हियर. 10 प्लस 1 11, 8 plus 2 10, then 6 plus 3 9 and then 4 plus 4 8, then 2 plus 5 7. ये मेरी लिस्ट हो गई बेटा L2. अब ये L2 में अपेंड कर दिया. अभी ये कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मेरा अभी तक प्रिंट फंक्शन ही नहीं आया. ये जस्ट अभी वैल्यूज हम स्टोर करा रहे हैं. L2 डॉट अपेंड. अब L2 में मुझे अपेंड करना है. L2 मेरी ये वाली लिस्ट हो गई बेटा. ठीक है, इसमें मुझे क्या अपेंड करना है length of L. That means length of this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा 9 माइनस लेंथ ऑफ L1. L1 की लेंथ कितनी है बेटा अभी कैलकुलेट की थी 5. अब मैं 9 इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी आई है बेटा 9 माइनस 5. 9 माइनस 5 4. अब वो 4 मुझे कहाँ पर अपेंड करना है L2 के आगे. अब L2 क्या हो जाएगा 11 10 9 8 7 4 और वो मुझे क्या करना है प्रिंट करना है. तो जो मेरी फाइनल लिस्ट होएगी L2 वो क्या प्रिंट होएगी 11 10 9 8 7 and 4. This is the final answer. Here the bracket of list 11 10 9 8 7 and 4. You have to write this. Now next question, this is from the random function, random module based question. Again the easy one. Study the following program and select the possible outputs. Bracket में इसमें लिखा है, that means एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं. From the options 1 to 4 following it. Also write the maximum and the minimum value that can be assigned to the variable y. कि आपने y वेरिएबल में कौन सी वैल्यू को असाइन करोगे मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करा. नाउ दिस स्टेटमेंट x इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम. नाउ जो मेरा रैंडम फंक्शन है इट विल जनरेट वैल्यूज डेसिमल फ्लोट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1. इट विल इंक्लूड 0 बट 1 इट विल नॉट इंक्लूड. आई हैव यूज्ड दिस ओपन एंड क्लोज इंटरवल जो मैथ्स में यूज करते हैं, बट जो मैथ स्टूडेंट्स नहीं है आई एम राइटिंग इट हियर. 0 विल बी इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड. व्हेन दिस बेटा व्हेन जब हम रैंडम फंक्शन को कॉल करेंगे. और नेक्स्ट टाइम y इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडइंट 0,4. दैट मीन्स जो मेरा रेंडइंट इंटीजर वैल्यूज जनरेट करेगा इसमें मेरी दोनों बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं. ठीक है, तो y की वैल्यू 0 1 2 3 4. अब जो आपका एक क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वो पार्ट हो गया. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 4 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 0.
आपको एग्जाम में अलग से हाईलाइट करके लिखना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज 4। अब इस प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करना है। अब ध्यान से देखना बेटा, कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट ऑफ x, दैट मीन्स नाउ सी दिस, x क्या है मेरा, 0 से लेकर 0.999 समथिंग कुछ भी हो सकता है, बट 1 नहीं होगा। और अगर मैं उसके आगे इंट फंक्शन लगा दूं, इंट फंक्शन ध्यान रखना इंटीजर पार्ट लेगा, उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। दैट मीन्स 0.9 अगर मैं इंट फंक्शन लगाऊं तो वो 1 नहीं होगा। तो दैट मीन्स 0.0 समथिंग 0.99 भी, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरा आंसर है वो किससे स्टार्ट होगा, 0 से। ये आंसर आपका इनकरेक्ट हो गया, ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद कॉलन, अब इनमें से देखते हैं कि ये दोनों करेक्ट हैं कि कोई एक करेक्ट है। कॉलन आ गया, y प्लस इंट ऑफ x, इंट ऑफ x मीन्स 0 और वैल्यूज ऑफ y 0 to 4, दैट मीन्स इस कॉलन के बाद 0 to 4 में कुछ भी वैल्यू हो वो करेक्ट है। 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो दैट मीन्स माय करेक्ट ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड फोर्थ। एंड द बेस्ट ट्रिक टू सोल्व द रैंडम फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, you try to eliminate the incorrect options। इसमें आप क्या करो, जो आपको लग रहा हो कि ऑप्शन इनकरेक्ट है, try to eliminate it first, then आपके पास जो एंड में बचेगा that will be the corrected one। So first and 4 are the possible outcomes and maximum value is 4 and minimum value is 0। Now let's do this practically। Write a method display thrice L in Python to display the elements of list thrice if it is a number। दैट मीन्स अगर मेरे लिस्ट का एलिमेंट नंबर है, मीन्स दीज आर माई नंबर्स 41, 13, तो मुझे उसको क्या करना है, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स डिस्प्ले कराना है। टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट थ्राइस, 41, 41, 41, 13, 13, 13, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एंड डिस्प्ले द एलिमेंट टर्मिनेटेड विद हैश इफ इट इज नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर नहीं है तो आपने उसके आगे क्या लगाना है, हैश सिंबल। Let's do this practically। This is our list। Here we have to define the function and the name of function is display thrice। और यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट दिया है L। ये L कौन सा बेटा, जो मेरी लिस्ट गिवन है यहाँ पर, ये जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी डिस्प्ले थ्राइस, ये मैं यहाँ पर पास करूंगी डिस्प्ले थ्राइस, और यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, द नेम ऑफ माई लिस्ट, दैट इज दिस लिस्ट। अब ये आपकी किस में आ गई बेटा, एल में। नाउ फॉर आई इन एल, यहाँ पर आप रेंज फंक्शन भी लगा सकते हो, बट रेंज फंक्शन तब लगाओ कि कोशिश करो जब मुझे इंडेक्स से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करना हो। मीन सपोज होता है इवन पोजीशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समथिंग लाइक दिस, इंडेक्स से रिलेटेड, तो वो 0, 1, 2, 3 मेरे पास वैल्यूज किस में आती हैं, इंडेक्स में। बट यहाँ पर मेरा काम डायरेक्ट एलिमेंट से हो जाएगा, और जो एलिमेंट्स है मेरे इंटीजर वैल्यूज नंबर्स, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो फॉर आई इन एल, दैट मीन्स आई में पहले क्या आ जाएगा 41, फिर द्रोण, फिर गिरिराज, इस तरीके से। नाउ आई एम चेकिंग द कंडीशन, इफ आई, अब मुझे कैसे पता लगेगा ये डिजिट है कि नहीं, फॉर दैट वी आर हैविंग द इज डिजिट फंक्शन। इफ आई डॉट इज डिजिट, अगर वो डिजिट है तो मुझे क्या करना है, उसको थ्राइस 3 टाइम्स डिस्प्ले कराना है। दैट मीन्स अगर मैं i इंटू 3 लिख दूं, i मेरी क्या है बेटा, स्ट्रिंग 41, दैट मीन्स i में मेरी ये वाली वैल्यू है, और अगर स्ट्रिंग को मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 41, 41, 41। ठीक है, अब मैंने लिखा एल्स पार्ट की अगर वो डिजिट नहीं है तो मुझे क्या करना है, उसके साथ हैश प्रिंट कराना। अब देखो क्या ऑप्शन है, एक तो मैं i लिख दूं, कोमा करके अगर मैं विद इन कोट्स हैश लिख देती हूँ, बट इससे देखो क्या होगा, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस, वो थ्राइस तो आ गया, बट यहाँ पर देखो गैप भी आ रहा है जो मेरे डिजिट्स नहीं है। और अगर मैं यहाँ के एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका उस मीन्स जो आपके अल्फाबेट्स हैं उसके बाद वो हैश सिंबल के बीच में स्पेस नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा की जगह प्लस लगा देंगे। प्लस से क्या करेगा, वो दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देगा, और जब हम कंबाइन करते हैं तो वहां पर वो स्पेस शो नहीं करता।
अब ये मेरा एग्जैक्ट आउटपुट शो हो रहा है जो मेरे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, फंक्शन डिफाइन करा, देन वी हैव यूज्ड द फॉर लूप। इस आई में क्या आ जाएंगे, 1 by 1 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एल, अगर वो डिजिट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई मीन्स वो 3 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको कहते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको क्या करते, इंटो 5 लिख देते, तो ये मेरा क्या होता है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता, और फिर ये आपका क्या हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 41 इंटू 3 129 और 13 इंटू 3 39। अगर क्वेश्चन में ये चीज पूछी होती तो करते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write a user defined function search to display those items which are in the range of 10,000 and 60,000, both values included, from the CSV file items.csv consisting of the item number, item name and price. Now see बेटा, अगर एग्जाम में सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सपोज 3 मार्क्स में आया, तो उन्होंने आपको नहीं बोला डेटा राइट करो, रीड करो, so we are assuming कि data is already written in the file, so there is no need to write the data in a file and write the even function for that also. You can directly even write the search function, but we will do this practically, so I am writing this the read and write function also. Now let me just open it my Python. Now see here, I am having this code to write and read the data. Search will perform now. The very first thing we have to do, we have to import the CSV module. Then we are defining the write function. Here CSV.csv file. If it is not given in the question, it's your choice. If it is given in the question, so you have to write that only. Then new line argument की सारा हम कैसे क्यों यूज करते हैं, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट का क्या यूज है, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है. यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग फॉर दैट. एंड to write the data in a CSV file, first of all we have to create the writer object of the CSV module. Then with the help of writer object we have to call the write row or write rows function. Write rows function is used to write the multiple rows, means in the form of nested list if you want to enter the data. क्या क्या लिया हमने लिस्ट में, आइटम नंबर, नेम एंड प्राइस. फिर हमने उसकी एक लिस्ट बनाई, उसको हमने फाइल में राइट करा दिया. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये रीड फंक्शन परफॉर्म किया. देन आई एम कॉलिंग दिस राइट एंड देन रीड फंक्शन. लेट मी जस्ट इरेज इट फ्रॉम हियर. ठीक है, हमने वही फाइल ओपन करी सिंपल रीड मोड में, रीडर फंक्शन कॉल किया टू ऑफ CSV मॉड्यूल टू क्रिएट द रीडर ऑब्जेक्ट. विद द हेल्प ऑफ रीडर ऑब्जेक्ट हम फॉर लूप लगाएंगे तो आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा. लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. Item number I am entering 101. Item name, let's suppose laptop. Cost 48,000. More record, yes. Item name. $103. Let's suppose mouse. And price 500. 104. Keyboard. And let's suppose its price is 1500. 4 records we will enter. अब ये डेटा उसने हमें रीड करके शो कर दिया. Let me show you the CSV file also. And the name of the CSV file is items.csv. This is my CSV file. तो एज यू कैन सी जो हमने अभी रिकॉर्ड्स एंटर करे हैं वो मेरे इसमें CSV फाइल में स्टोर हो गए. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स व्हिच आर हैविंग प्राइस रेंज फ्रॉम 10,000 टू 60,000. दैट मींस लैपटॉप और पीसी डिस्प्ले होने चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू नो कि जो मेरी CSV फाइल्स होती हैं दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट फाइल. अब एक चीज आप ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर प्राइस एंटर करा है, किस में एंटर करा है, इंटीजर में. दैट मीन्स वो इंटीजर में होना चाहिए. बट यहाँ पर ये चीज देखो किस में प्रिंट हो रहा है, कोट्स में. दैट मीन्स ये आपकी कोई भी टाइप की वैल्यू आप एंटर करो, वेदर इट्स स्ट्रिंग और इंटीजर,
ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, बिकॉज CSV फाइल्स आर माई टेक्स्ट फाइल. So to compare the elements, we have to convert this value to the integer. With the help of int function we will do. And plus जब हम compare करेंगे, जो हमारी very first row है, that means header row, वो ये है. अब इसको तो मुझे नहीं compare करना, इसको मुझे skip करना. For that we are having the next function. Now read the question. You have to write a user-defined name function search to display those items. Means complete details display करानी है. Who are in the range of 10,000 and 60,000. Now you have to define this search function here. ठीक है, the very first step you have to open the file and the name of my file is items.csv. और किस मोड में ओपन करेंगे, read मोड में, because we have to search the data. After that we have to create a reader object. With the help of CSV module we have to call the रीडर फंक्शन. इस पे हम फॉर लूप लगाएंगे. अब इसमें मेरे पास क्या आ गया, प्रिंट आई. अगर मैं आपको दिखाऊं, जो भी हमने एग्जीक्यूट किया था, लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है. अब मुझे क्या करना है, प्राइस. इसका इंडेक्स क्या है बेटा, 2, 0, 1 और 2. तो हियर आई हैव टू राइट इफ इंट आई ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 एंड int of I2 less than equals to 60,000. ठीक है, अब यहाँ पर एक वो लिख देते हैं नेक्स्ट फंक्शन, उसको आप प्रिंट भी करा सकते हो. इससे क्या होगा, वो आपका जहाँ पर मेरा पॉइंटर बिगिनिंग पे है वो नेक्स्ट रो पर आ जाएगा. मींस अब वो हेडर रो को यहाँ पर कंपेयर नहीं करेगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, क्योंकि हम तो अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंटीजर से. और जो फर्स्ट हेडिंग आपकी हेडर रो है प्राइस, वो तो इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पर ये नेक्स्ट फंक्शन नहीं लिखेंगे तो देन इट विल डिस्प्ले द एरर मैसेज. अब क्वेश्चन में क्या है, आपको कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करानी है, दैट मींस प्रिंट आई. एंड हियर आई एम क्लोजिंग द फाइल. और यहाँ पर हमने कॉल कर दिया बेटा सर्च फंक्शन. नाउ देयर इज नो नीड टू कॉल द राइट फंक्शन अगेन बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी रिटन इन द फाइल. लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. As you can see, ये तो मेरा कौन सा जो डेटा हमने रीड करा था, ये वो वाला शो हो रहा है, दिस वन, द एंटायर डेटा. उसके बाद जो हमने कंडीशन लगाई, जो प्रिंट में मैंने नेक्स्ट आरो लिखा है, ये वहां से प्रिंट हो रहा है. अब जिसका प्राइस रेंज देखो 10 to 60,000 के बीच में है, वो डिस्प्ले हो गया कंप्लीट. रिकॉर्ड, अगर क्वेश्चन गिवन होता यू हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ आइटम्स ओनली, कि जिसकी रेंज 10 to 60 है, and you have to display the item names only. अब item names कौन से इंडेक्स पर है बेटा, 1. तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख देते हैं, i of 1. दैट मीन्स जो मेरी लिस्ट आई है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है, you have to display that value. Now moving on to the next question. This we have done. आपके एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, no need to write the function to write the data in the file until and unless it is asked in your exam. Now next question. Rihanna Medical Center has set up its new center in Dubai. It has 4 buildings as shown in the diagram given below. Accounts building, research lab, packaging unit and store. Distance between various buildings, it is given in the meters. And number of computers are given in the each building, जो आपके installed है. As a network expert, provide the best possible answer for the following queries. So my first question is, suggest the most suitable place, that is building, to house the server of this organization. And server आपका हमेशा वहां पर प्लेस होगा where my number of computers are maximum. तो you will check this table. अब यहाँ पर जिसमें number of computers maximum है, that means research lab. So we have to place the server in the research lab and we will write the reason because in research lab number of computers are maximum. Now next question, draw the cable layout to effectively connect the buildings. So to connect the buildings there are two methods. Either you can use the shortest distance method. या सबसे small distance कौन सा बेटा, 55 मीटर. ठीक है, तो आपने क्या करना है, 55 मीटर from accounts to research lab. So from accounts to research lab कनेक्ट कर देंगे. 55 के बाद है बेटा 60 मीटर.
फ्रॉम पैकेजिंग टू रिसर्च लैब। आपने बस ये चीज ध्यान रखनी कि उसमें आपका लूप ना क्रिएट हो। लूप मीन्स सपोज अकाउंट्स टू पैकेज यूनिट को कनेक्ट कर देती हूँ तो ये मेरा क्लोज लूप बन जाएगा। इस टाइप का आपने अवॉइड करना है। या जो आपका सबसे सिंपलेस्ट मेथड रहता है कि आपको सर्वर पता लग गया कहाँ पर है, वेयर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट रिमेनिंग बिल्डिंग्स टू द सर्वर। अब सर्वर कहाँ पर था मेरा बेटा, रिसर्च लैब में, वेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम। You just have to connect the research lab building with accounts office, packaging unit and then store. ठीक है। Now next question. Suggest the placement of the following devices with justification. Means repeater और hub switch आपने कहाँ पर place करने। अब repeaters are always used to place where the distance is more than 100 meter. Or in some books you can find even 70-80 meters also. तो आपका जहाँ पर डिस्टेंस 70, 80, 100 मीटर से अबव है वहां पर हम क्या प्लेस कर देंगे अपने रिपीटर्स। सो वी विल प्लेस रिपीटर्स बिटवीन अकाउंट्स टू स्टोर ऑफिस, स्टोर टू पैकेजिंग यूनिट, अकाउंट्स टू पैकेजिंग यूनिट एंड स्टोर टू रिसर्च लैब। एंड वी विल प्लेस द हब और स्विच इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। हब और स्विच आपके हमेशा हर एक बिल्डिंग में हम प्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर to prevent unauthorized access to or from the network. नेटवर्क में हमारा unauthorized access ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए we are having the firewall. It can be your hardware and even it can be your software also. Now next आपका abbreviation से related question भी आता है। Expand the following. The full form of VOI is Voice over Internet Protocol, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई एम हैविंग द कंप्लीट वीडियो फॉर एब्रिविएशंस आल्सो जो आपके सिलेबस में है। फॉर दैट यू कैन वॉच माय प्लेलिस्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उसमें आपको ये मिल जाएंगे सारी एब्रिविएशंस, वो एक ही वीडियोस में सारी एब्रिविएशंस है। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन ऑफ MySQL. Consider the table coaching given below. Write commands in SQL from 1 to 3 and output for the 4 and 5. This table is given. I have already created this table in my SQL so that I can implement this query, implement all the queries of this question practically also. Let me show you that. Now see this. I have opened my MySQL. I have created the table with name coaching और same data लिया, same field names लिया as it is given in your question. Now see this question first. Write a query to display name. Column के names क्या क्या है बेटा, ID, name, age, city and fees. And believe me बेटा, this MySQL question is the easiest and the scoring part of your curriculum. Easy भी है plus scoring भी है, इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। जो चीज इंपॉर्टेंट है, इजी है और स्कोरिंग भी है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ क्या कराना है, डिस्प्ले नेम। तो व्हाट वी विल राइट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम इज कोचिंग, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स आपने नेम को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हुज एज इज मोर देन 23, वेयर एज इज ग्रेटर देन 23, ऑर्डर बाय नेम, और किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एज यू कैन सी जो मेरा ये एज वाला कॉलम है इसमें सभी की एज क्या है बेटा, 23 से अबव है, तो ये कंडीशन ट्रू होएगी मेरी, वेयर एज ग्रेटर देन 23। और जो यहाँ पर आपका नेम वाला कॉलम है ये अब आपका किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स फ्रॉम Z to A आपके नेम्स शो होंगे। नाउ सी दिस, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आएगा। प्लस यू हैव टू राइट द क्वेरी, सो यू हैव टू राइट सेलेक्ट नेम फ्रॉम कोचिंग, वेयर एज ग्रेटर देन 23, ऑर्डर बाय नेम, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। एंड इफ इट इज मेंशन कि यू हैव टू सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, तो यू कैन स्किप दिस आल्सो बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर इज द डिफॉल्ट केस। If you want to mention, you can write ASC for ascending. Write a query to find the average fee. Means average of fee आपको find out करना है. Group by the age. किस column की grouping करनी है? Age column की.
दीज कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सॉर्टिंग, ग्रुप बाय, बिटवीन, हैविंग की आपकी आती ही आती है, ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एवरेज फीस ग्रुप्ड बाय एज। अब ग्रुपिंग किस कॉलम की करनी है बेटा, एज की, और जिस कॉलम की ग्रुपिंग करते हो उसमें जनरली आपकी कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, जैसे 34 रिपीट हो रहा है, 35 वन टाइम है, 36, दैट मीन्स अब मुझे किसकी ग्रुपिंग करनी है, एज वाइज एवरेज फीस निकालना है कि जिसकी एज 34 है, दीज टू पर्संस, उनकी मुझे फीस का क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। नाउ वी विल राइट द सिंटेक्स हियर, सेलेक्ट। अब ग्रुप बाय के सिंटेक्स में हम जनरली क्या करते हैं, या तो आप सिंपल एवरेज फीस लिख दो, प्लस हम जनरली लिखते हैं जिस कॉलम की ग्रुपिंग कर रहे हैं वो कॉलम भी, कि किस, जैसे 34 ऑफ एज होगा जो, उसकी ग्रुपिंग शो करेगा, मींस उसकी एवरेज फीस। फ्रॉम टेबल नेम कोचिंग, ग्रुप बाय, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है बेटा, एज। तो यहाँ पर आ गया जो एज मेरे जिन पर्सन्स की 34 है वो 2 पर्सन्स हैं, उनकी फीस का क्या आ गया बेटा, एवरेज। और एवरेज कैसे फाइंड आउट होगा, 34 में 1 इज 45,000 एंड सेकंड इज 45,000, तो 45 प्लस 45 90,000, व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 2 वी विल गेट 45,000, so that's why it is showing this 45,000. Now next part, third part, write the query details, मीन सारी डिटेल्स इस पे अगर आनी है, फ्रॉम कोचिंग टेबल वेयर फीस इज बिटवीन 30,000 and 40,000. तो select star from table name where fee between 10,000 and 20,000, I think, sorry, 30,000 and 40,000. So 30,000 and 40,000. एंड इन बिटवीन ऑपरेटर आपकी जो बाउंड्री वैल्यूज है, मींस 30,000 एंड 40,000, ये भी इंक्लूड होंगी। सो इस रेंज में मेरा एक ही है रिकॉर्ड, दिस इज फ्रॉम आईडी P7। आप यहाँ टेबल चेक कर सकते हो, 30 और 40,000 के बीच में दिस फीस कॉलम, ये भी नहीं आता, सिर्फ मेरे पास 30 to 40 की रेंज में कौन सा आ रहा है, 34,000। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेलेक्ट सम फीस। अभी आपको क्वेरी गिवन है, दैट मीन्स आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, और आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट सम फीस, मीन्स फीस वाले कॉलम का सम करना है, फ्रॉम कोचिंग वेयर सिटी लाइक परसेंट ओ परसेंट, दैट मीन्स परसेंट मीन्स एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बीच में ओ आएगा, इसके बाद भी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो लेट मी सी कि अब मेरे पास ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं, किस पर पहले तो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, सिटी पर। अब ओ जो बीच में आ रहा है, एक ये भोपाल और एक ये इंदौर, इसकी मुझे क्या करना है, सम करना है फीस का, ठीक है, 60,000 प्लस 34,000। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो व्हाट आउटपुट विल आई गेट, 94,000। तो आपका यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 94,000। और एग्जाम में कैसे लिखोगे, सम देन फी कॉलम का नेम देन योर रिजल्ट। Now next question, select name or city from coaching group by having count age greater than 2. ठीक है, now it will show you the empty set. क्यों, क्योंकि इस टाइप का मेरा इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। Let me show you why this is showing. Sorry, select star from table name. अब देखो, अगर मैं अपना ये ग्रुपिंग वाला लगाऊं, ये सेम हैविंग वाला सिंटेक्स लगाऊं विदाउट ग्रुपिंग वाला, विदाउट हैविंग, ग्रुप बाय एज, कि अब मैंने ग्रुपिंग कर दी एज के अकॉर्डिंग, नेम और सिटी आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, हैविंग वाला सिंटेक्स लगा रही हूँ जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, काउंट ऑफ एज ग्रेटर देन 2। अब जो मेरा डेटा है यहाँ पर चेक करो कि क्या कोई एज ग्रेटर देन 2 है, काउंट ऑफ एज 34 भी मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, जो मेरा 2 से ग्रेटर नहीं है। उसके बाद 36 भी मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 2 से ग्रेटर नहीं है, और ये मेरा 1 टाइम आ रहा है। तो ऐसी कोई रो नहीं है जो मेरी कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू द एम्प्टी सेट। दैट्स ऑल फॉर दिस सैंपल पेपर। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा मेरे साथ, प्लस आपके जो कंसेप्ट्स हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, एंड यू एंजॉयड दिस वीडियो। और इस वीडियो के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। If you like my video, do press the like button,
share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.